Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 11 in the orchard from class 4th EVS semester 1. Now here some details are given. You can see here one box is given and in detail like grow on trees, grow on bushes, grow on climber plants, and other side two boxes are there in which we have to write the name of two flowers. So grow on trees. So flowers which grow on trees are Palash, Gulmohar. Grow on bushes, rose, lavender. Grow on climber plants, bougainvillea, star jasmine. Grow on aquatic plant, lotus, water lily. Bloom only at night, Raat ki Rani, moonflower. Bloom in day and close at night, morning glory, sunflower. Flower recognized by the scent, rose and jasmine. Bloom round year, that is coneflower. Bloom only during certain months, so that is marigold and tulip. You have so much information. Now tell that, are there any trees or plants which never have any flowers? Find out and write. So yes, ferns and mosses, they don't have any flowers. Okay. Now why this? Here you can see a board. Do not pluck flowers. It is written on that. So have you ever seen a board like this put up anywhere? So आपने कभी भी ऐसा बोर्ड देखा है? तो yes, we have seen such board in public parks or gardens. Do people pluck flowers even when this board is there? अगर ये बोर्ड होता है तो भी क्या लोग फूल तोड़ते हैं? No, usually when this board is placed, people don't pluck flowers. Why did people do this? Think, लोग ऐसा क्यों करते होंगे? तो they do this as they do not respect the rule and some others do it for fun. That's why they pluck the flowers. What would happen if everybody plucked flowers? क्या होगा अगर सभी लोग इस तरीके से फूल तोड़ेंगे? So if everybody plucked flowers, then there would be no flower left in the parks. Should they do this? क्या उनको ऐसा करना चाहिए? No, it's against the rule and people should not pluck flowers. Let us look closely. Go to the garden, collect flower which have fallen down, look at the flower carefully and tell. Now this is one kind of experiment for you, so you have to do by yourself. आपको garden जाना है, जो भी फूल नीचे गिरे हैं उसको उठाना है, and you have to write down what is the color of the flower, what kind of fragrance does it have, what does it look like, does this flowers grow in bunches, how many petals does it have, are all the petals joined together or separate? Is there any green leafy structure outside the petals? Can you see some thin structure in the middle of the flower inside the petals? When it does this, do you find powdery thing on your hands? So by observing this thing, you have to fill this table. Now blooming birds. You must have seen birds on the plants. तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि plants पे birds लगे होते हैं. अब ये birds क्या होते हैं? तो birds means कली. ऑब्जर्व द बर्ड्स ऑन प्लांट्स विच ग्रो नियर योर सराउंडिंग्स. तो आपके सराउंडिंग्स में, आपके जो आसपास के पड़ोस में आप देखिए जो प्लांट्स लगे होते हैं तो उस पर काफ़ी कलियाँ लगी होंगी, तो आपको उसे ऑब्जर्व करना है. यू कैन सी हियर वेरी वेल इन दिस पिक्चर अ फ्लावर इज़ देयर एंड अ बर्ड इज़ देयर. नाउ व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड? अब आपको एक फ्लावर और एक बर्ड के बीच में क्या डिफरेंस दिखता है? सो बर्ड इज़ स्मॉलर देन अ फ्लावर. जो बर्ड होता है वो फ्लावर से काफ़ी छोटा होता है. बर्ड्स आर एक्चुअली द वेरी अर्ली फेज ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन. तो जो बर्ड होता है वो फ्लावर फॉर्मेशन का बहुत ही पहला स्टेज है. इट्स द बर्ड दैट डेवलप्स इनटू अ फ्लावर. तो वो एक बर्ड ही होता है जो एक फूल के तौर पे बड़ा होता है. नाउ कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर? सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट. तो अब हम ये देखेंगे कि एक जो बर्ड है वो फ्लावर में चेंज कितने दिनों में होता है, तो वो हम आगे देखते हैं. चूज़ अ बर्ड दैट इज़ ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुक इट एवरी डे. अब आपको कोई भी प्लांट में जो बर्ड लगा है उसको सेलेक्ट कर लेना है, चूज़ कर लेना है और आपको उसे हर रोज़ ऑब्जर्व करना है. राइट द नेम ऑफ द प्लांट और उसका आप नाम लिखिए. तो इट टेक्स, तो आप जैसे मान लो अगर आपने हिबिस्कस किया है या रोज़ किया है, आप कुछ भी कर सकते हो. हियर आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल. इट टेक्स अबाउट 4 to 5 days फॉर अ बर्ड टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर. तो 4 से 5 दिन लगते हैं एक बर्ड को फ्लावर में चेंज होने में. व्हेन डिड यू फर्स्ट सी द बर्ड? तो अगर आप फर्स्ट टाइम उस बर्ड को कब देख रहे हो, तो रैंडमली आई हैव रिटन अ डेट हियर.
आई हैव रिटन 2 मार्च। व्हेन द बर्ड हैज़ ब्लूम इनटू अ फ्लावर, तो जब वो बर्ड फ्लावर में चेंज हो रहा है तो उसको कितने दिन लग रहे हैं, तो आई हैव रिटन 7th मार्च। दैट मीन्स हाउ मेनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम अ फ्लावर, 5 days। आस्क योर friends the names of the flowers that they have seen, how many days did it take their buds to bloom into flower। तो सेम चीज़ आपको आपके फ्रेंड्स लोगों से पूछनी है कि उन्होंने जिस फ्लावर को, जिस बर्ड को ऑब्जर्व किया है, उस बर्ड को चेंज होने में, एक फ्लावर में चेंज होने में कितने दिन लगे। So here I have written hibiscus and sunflower। Also observe how many days the same flower took to dry। तो अगर hibiscus और सनफ्लावर मैंने यहाँ लिखा है तो इन फ्लावर्स को ड्राई होने में, यानी ये कितने दिनों में ये सूख जाते हैं। सो हिबिस्कस टेक्स 30 days टू ड्राई एंड सनफ्लावर्स टेक्स 30 to 40 days टू ड्राई। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर्स इन योर नोटबुक। नाउ हियर यूजेस ऑफ फ्लावर्स, अगेन अ टेबल इज गिवन। यूज़ ऑफ फ्लावर एग्जाम्पल, जैसे गुलकंद है तो इस फ्लावर का क्या काम है, ये आप खाने में यूज़ कर सकते हो। रोज़ वाटर है तो इसे आप मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हो, सेंट की तरह यूज़ कर सकते हो। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू फिल दिस टेबल। नाउ यू नो हाउ यूज़फुल द फ्लावर्स आर। अब आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि फ्लावर्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं, हमारे बहुत काम आते हैं। नाउ डेज एट मैनी प्लेसेस फ्लावर्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स। आजकल आपने देखा होगा काफ़ी जगह खेतों में फ्लावर्स की खेती होती है। फ्लावर्स आर ग्रोन एट सो मैनी प्लेसेस। फ्लावर्स की खेती बहुत सारी जगह उसको ग्रो किया जाता है। इमेजिन फील्ड्स ऑफ फ्लावर्स स्प्रेड आउट अप टू माइल्स। जस्ट आप इमेजिन करो कि ये जो फ्लावर्स यानी जो फूलों की खेती है ये काफ़ी मीलों मीलों तक फैला हुआ है। हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। तो ये कितना सुंदर लगेगा। लेट अस नो सम मोर। नाउ हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर। क्या आपने कभी भी देखा है कि कोई फूल बेच रहा है कहीं पे। इफ़ देयर आर एनी फ्लोरिस्ट नियर बाय, आस्क देम दिस क्वेश्चंस एंड राइट। अगर आपके नियर बाय प्लेस में कोई फ्लोरिस्ट है, फ्लोरिस्ट का मतलब जो फूल बेचता है या फूल से बनी हुई चीज़ें लाइक बुके है, इस तरह से वो बेचता है, तो आपको उनसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। व्हाट आर द फ्लावर्स दैट दे सेल। तो वो कौन कौन से फ्लावर्स को बेचते हैं, तो रोज, जैस्मिन, लोटस। हियर आई हैव रिटन 3 बट देयर आर मेनी मोर। फ्रॉम वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स। वो लोग ये फ्लावर्स कहाँ से लेके आते हैं। सो दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम हॉर्टिकल्चर फार्म्स एंड गार्डन्स। तो ये हॉर्टिकल्चर फार्म्स से और गार्डन से, यानी कि जो फूलों की खेती जहाँ की जाती है वहाँ से। वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स। लोग फ्लावर्स को क्यों खरीदते हैं। सो पीपल बाय फ्लावर्स फ्रॉम वेरियस पर्पसेस। तो बहुत से अलग अलग रीजंस की वजह से वो खरीदते हैं, जैसे डेकोरेशन हो गया, वर्शिप हो गया, या फिर किसी को गिफ्ट करना है। इन वॉट फॉर्म्स डू फ्लोरिस्ट सेल देयर फ्लावर्स। तो फ्लोरिस्ट किस फॉर्म में फूलों को बेचते हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स, मार्क टिक अगेंस्ट दोज फॉर्म ऑफ फ्लावर्स दैट यू हैव सीन। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ आपको दी गई हैं, आपने किस फॉर्म में फ्लावर्स को बेचते हुए देखा है, यू हैव टू टिक दैट। सो सी द सेकेंड पिक्चर, दिस इज आर बुके। तो बुके के फॉर्म में हमने उनको देखा है। लूज इन द थर्ड पिक्चर दैट लूज पेटल्स आर दे आर सेलिंग। इन द फोर्थ पिक्चर you can see the garland of the flowers, okay, and in the sixth picture you can see that in the form of decoration, मतलब किसी चीज़ का डेकोरेशन करने के लिए इस तरीके से वो लोग बेचते हैं। हैव यू सीन एनी अदर फॉर्म ऑफ फ्लावर्स देन दिस। क्या आपने इसके अलावा और भी कोई फॉर्म देखा है, और भी कोई तरीका देखा है फूलों को बेचने का। तो सेलर सेल्स फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ गजरा। यस, तो जो सेलर्स होते हैं वो गजरा के फॉर्म में भी फूलों को बेचते हैं। सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। कुछ फ्लावर्स को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे रोज़ एंड मैरीगोल्ड आर यूज्ड इन गार्लैंड्स। जैसे कि जो रोज़ है या मैरीगोल्ड है वो उसकी मालाएं बनाई जाती हैं, और लूज पेटल्स के फॉर्म में भी उसको बेचा जाता है। नाउ फाइंड आउट द प्राइजेज ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लावर्स। तो आपको इसका जो प्राइस है, जो फूलों का प्राइस है, वो अलग अलग फॉर्म में आपको बताना है। तो अगर आप एक फूल खरीदने जाते हो मार्केट में, सो यू विल गेट दैट फ्लावर इनटू ₹10. It depends on the flower. Now one garland, so approximately I am giving you the answer, 50 rupees. One bouquet, 200 rupees. Has the florist learned to make bouquet or a net of flowers from anybody, from whom? तो क्या ये जो फ्लोरिस्ट है इसने ये बुके या जो फ्लावर्स का जो नेट है ये किसी से बनाना सीखा है। अगर सीखा है तो किस से। सो येस, द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुके और अ नेट फ्लावर्स फ्रॉम हिज फादर और फ्रॉम देयर एल्डर्स। ओके,
वुड दे लाइक द अदर मेम्बर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क एंड वाई? क्या वो चाहेंगे कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ये काम करें, और अगर हाँ तो क्यों? तो yes, they had liked to include other family members to do this work as it makes some extra earning for the flower seller. So till here, in our next video, we'll continue the chapter. Bye bye.